गुड आफ्टरनून एवरीवन। शुरू करने से पहले सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है दैट इफ स्टूडेंट्स आर वाचिंग देन आई वुड रिक्वेस्ट if your parents are available then also get your parents, because this session is going to be for not just the students but also for the parents. The content of the topic, it is going to be something like this. First of all, what we are going to discuss is that I have a decent amount of experience, so and therefore in the hindsight I can see कि मेरी mistakes कहाँ पे रही, ठीक है. Therefore students who are from class 8 onwards, how can I contribute to them, how can I help them, or what things can I tell them ताकि वो आगे जाके एक अच्छे स्टूडेंट बन पाए, आगे जाके वो अपने challenges को अच्छे से face कर पाए. So the first part would be regarding the students, how from class 8 onwards, that how they can deal with their issues and how they can look forward to their career and what learning styles and what learning strategies they should adopt. And this will be independent of IIT JEE. This will be independent of what career option that you choose. So therefore the first part is going to be relevant to all the students from class 8 onwards. It also will be relevant to the students who are in class 11th and 12th, because the strategies which need to be developed here वो बाद में भी काम आती हैं, ठीक है. The second part of the lecture, it is going to be upon some of the principles, or some of the basically mainly for IIT JEE, right? And it is not going to be very chemistry specific or physics specific or math specific. It is going to be about learning styles. It is also going to be about motivation, that how do you maintain the motivation. It is going to be about self-observation. So therefore overall how you should manage, and it is also going to be about parents. That is, what strategy should the parents adopt for having a student who is successful, so that they can act as strong pillars of support for the students, right? So therefore beginning our session with the class 8 students, that is students who are in class 8, students who are just beginning. Okay, so what are the strategies? So what are the kind of skills that a class 8 student is already looking forward to his or her, वो अपने करियर के बारे में सोचने लगता है और उसका माइंड काफी फ्लक्चुएटिंग भी रहता है, बहुत फॉर्मेटिव स्टेज होता है क्लास 8 का जो स्टूडेंट होता है, ठीक है. एंड प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा स्कूल का सिलेबस है, द वे आवर स्कूल सिलेबस इट इज डिजाइन्ड, इट इज मोर अबाउट रट्टाफिकेशन, है ना. तो हर स्टूडेंट का गोल ये हो जाता है, हर पेरेंट का गोल ये हो जाता है कि अच्छा हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक. सही तरीका क्या है? सो लाइक आई क्लियर्ड माई so I have done my physics, chemistry, maths in class 11th and 12th. Then I cleared IIT JEE, and after clearing IIT JEE I also went ahead and then worked in the private sector. उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने UPSC का एग्जाम लिखा, so I cleared UPSC. I got selected into Indian Revenue Services. 340 रैंक थी मेरी ऑल ओवर इंडिया. 10 लाख से ज़्यादा बच्चे क्या कहते हैं एग्जाम देते हैं. बट मेरी जर्नी जो थी वो बहुत प्रॉब्लमैटिक थी, वो आसान नहीं थी. मुझे क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आई कैन हेल्प यू बिकॉज व्हेन आई बिगैन माई जर्नी इन क्लास 9th और इन क्लास 10th आई वॉज नॉट अ टॉपर. इनफैक्ट मैं अपने पूरे स्कूल टेन्योर में कभी भी टॉप 10 में आए नहीं. बट देन आई वॉज द ओनली वन टू क्लियर IIT JEE फ्रॉम माई स्कूल, एंड देन आई वॉज ऑल्सो अमंग द वेरी फ्यू हु इन माई सर्कल हु क्लियर द UPSC एग्जाम. तो मैं आपसे क्या शेयर कर सकता हूँ, ठीक है. और इसलिए हाइंडसाइट में देखते हुए मैं अपनी गलतियां देख सकता हूँ, क्या चीजें जो मैंने बाद में सीखी वो मेरे पास अगर पहले से ही होती, मेरे पास वो गाइडेंस होती, ठीक है. तो पहली चीज विद रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स हु आर इन दिस फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ क्लास 8 टिल क्लास 12th, द फर्स्ट पॉइंट इज आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज अ FAQ अप्रोच. What is the meaning of an FAQ approach? Meaning of an FAQ approach is that you should be able to identify कि बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, ज़्यादा कुछ इंग्लिश है ही नहीं, बहुत ही एक सिंपल चीज़ है कि किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पता हो दैट व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट,
we should be able to understand why the concept. We should be able to understand result or impact of the concept. The how of the concept. इसका मतलब ले दे कि क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो बच्चे क्लास में एसएसटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आपके सामने आए, बिफोर इंस्टेड ऑफ सिंपली रट्टाफाइंग, you should try to identify these answers to these basic questions. So for example, if there is a topic regarding, let's say, French Revolution, then you should be able to identify. आपने सब पढ़ लिया, आपने NCERT पढ़ लिया, आपने क्लास अटेंड कर ली, सब कर लिया, उसके बाद you should be able to identify that okay, what was French Revolution? Can I answer it in one sentence, 2-3 sentences? Why did it take place? Where did it take place? Where is France on the map? ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, तो व्हाट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाई डिड इट टेक प्लेस, व्हाट वर द इवेंट्स इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये बहुत ही सिंपल है. सिंपल इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मम्मी, आपके पापा आपसे पूछे कि बेटा तू स्कूल में फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ रहा है, ठीक है, तेरा हिस्ट्री का आजकल ही क्लास चल रहा है, तो मुझे बताइए क्या था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, व्हाट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फिर वो हो सकता है आपसे पूछे, अच्छा ये क्यों हुआ, क्या ऐसी समस्याएं थी, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी दैट द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस. She might then ask कि अच्छा चल ये तो तूने बता दिया, अब ये बता कि what was the impact of the French Revolution, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसको हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं. ठीक है, देन शी माइट आस्क, तो इतना तू सब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो बता रहा है, तो इंडिया की सोसाइटी में भी कास्ट सिस्टम है, ऑपरेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, तो हमारे यहाँ क्या सिचुएशन है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही रेवोल्यूशन, राइट. सो देयरफॉर ये जो FAQ अप्रोच है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ द सब्जेक्ट, और इससे आप एक रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे रादर देन रोट लर्निंग, राइट, रादर देन रोट लर्निंग. ठीक है, एक और एक थंब रूल है. तो जब मैं IIT में था, तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है, मतलब अभी भी है. सो दैट वेरी गुड फ्रेंड यूज्ड टू, you know, for judging that whether we have prepared any subject thoroughly or not, or in decent enough manner or not, he used to ask कि अच्छा मुझे इस चीज के बारे में कोई 5 चीजें बता दे. That is, whenever you are studying geography, history, civics, polity, or even chemistry or physics or mathematics, so therefore a thumb rule is there that 5 things you think about it. That is known as power of summarization. Because problem is कि हम इतना सारा चीज पढ़ लेते हैं कि उसके बाद हमें at the end of the day we are unable to know कि अच्छा, मतलब पढ़ तो हमने 100 पेज लिए किसी चीज के बारे में, बट उसके बारे में जब 5 बातें बताने की बात आती है, तो हमारे पास कुछ नहीं होता है कहने के लिए, राइट. सो बेसिकली इससे क्या होता है, यू आर एबल टू, इन योर मैप यू गो थ्रू, इन योर माइंड यू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, एंड यू आर एबल टू टेक द जूस आउट ऑफ इट, and therefore it allows you to answer questions. Let's say if there is only a 5 marker question, or if there is just a 10 marker question where you are required to deal with the whole issue. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि हमारा बच्चा पॉइंट पे आ ही नहीं पाता है, और द स्टूडेंट फील्स कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन ब्रीफ. सो देयरफॉर at the time of preparation itself, if you follow this thumb rule and if you follow this FAQ approach, then you develop this pinpointedness. You do not go away from the question because you, आपको पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर एक अच्छे तरीके का पकड़ आपका रहता है. ठीक है, एक और चीज जो मैंने अपने लेटर ऑन यूपीएससी प्रिपरेशन में देखी, ठीक है, सो देयरफॉर इवन इन द केस ऑफ IIT JEE और इन द केस ऑफ यूपीएससी, एक और चीज जो देखी इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइंड मैप्स. दिस इज बेसिकली अ पिक्टोरियल डिपिक्शन of the concepts, and a very great tool. Why? Because it allows you to capture a huge amount of information in just 1 page or in just 2 pages. आपको मैं सिंपल एक फर्क आप महसूस करेंगे if you have to read a diagram, right? Compare it with reading a whole page, right? So when you look at the page, आपको कुछ पता ही नहीं चलता है.
जब तक आप उसके अंदर जूम इन नहीं करोगे, जब तक आप उसका एक एक लाइन नहीं पढ़ोगे पैराग्राफ का, यू आर अनेबल टू असर्टेन कि अच्छा इसके अंदर क्या है. बट व्हेन यू हैव अ माइंड मैप, हाउ डज अ माइंड मैप लुक? इट इज लाइक अ चार्ट ऑफ बबल्स. It is like a chart of bubbles, right? So therefore, if this is your concept, so it can be any concept, right? So therefore, if you say, okay, what was it? So this is the relation, what? And then you talk about 3 important events which took place in relation to that concept, be it India's freedom struggle, be it any concept of geography, be it any concept of civics. For example, concept of civics, they can be about the Constitution of India. ठीक है? So what is it? So basically आपका जो preamble है उसके components यहाँ पे आ जाएंगे. Similarly, next part is reasons. This is the FAQ approach that we are following. That why this particular phenomenon, why this particular event it occurred, and therefore these reasons they can again be multiple. So if you jot down like this, right? So therefore ultimately you are developing this pictorial thing, and then what was the result or what was the impact? ठीक है? So impact can be, again, let's say first impact can be on people. Example, अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन देख रहे हैं, so what was the impact on people of France? Second could be impact on the politics. जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक राजा था और वो राजा का तख्ता पलट हो गया और उसके बाद वहां पे एक जनता की सरकार आई, एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई. सो देयरफॉर हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो गया फ्रॉम अ मोनार्की टू अ रिपब्लिक. सो देयरफॉर व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन पॉलिटिक्स? थर्ड पॉइंट कैन वी सी व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑन इकोनॉमिक्स. बिकॉज जब हम, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल ले रहा हूं, सो व्हेन वी डिस्कस द रीजंस फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वन ऑफ द रीजन कैन बी इकोनॉमिक, कि जो लोगों की इकोनॉमिक व्यवस्था थी वो काफी खराब थी और इस वजह से लोगों में उपद्रव हुआ और वो सड़कों पे आ गए एंड दे ओवरथ्रू द फ्रेंच गवर्नमेंट. तो उन्होंने अगर ओवरथ्रो कर दिया तो क्या उसके बाद उनकी इकोनॉमिक्स इंप्रूव हुई? क्या उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज और इंप्रूव हुई? क्या वो पढ़ाई लिखाई करके जो भी कुछ बनना चाहते हैं क्या वो बन सकते थे? सिमिलरली, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, एक इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हम अपना एक स्ट्रक्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन का या किसी भी कॉन्सेप्ट का बनाएं तो हमें क्या पता चलेगा? अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आप अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं या फिर आप अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. जब वॉट की बात आई तो आप इसके अंदर कह सकते हैं कि ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में है, हमारा जो प्रीएम्बल है वहां से ये पावर डिराइव हो रही है, ठीक है, और इसके लिए हमने अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर लॉ निकाला हुआ है, ठीक है. रीजंस, तो उसके रीजंस आ सकते हैं. इकोनॉमिक रीजंस क्या है? महात्मा गांधी ने कुछ कहा था, मतलब कि हिस्टोरिकल रीजंस क्या है, ठीक है. हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ कहा था या फिर भीमराव अंबेडकर जैसे उनके एक मेजर हो गए, तो हिस्टोरिकल रीजंस. और इस तरीके से हम देख सकते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक और पार्ट आ सकता है क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. सोशल रीजंस भी आ सकते हैं कि उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता या फिर इस तरीके से होता है. तो एक हम इस तरीके से रीजंस आ गए. इंपैक्ट, तो क्या असलियत में इंपैक्ट हुआ है? दलित की पॉलिटिक्स पे इंपैक्ट हुआ है कुछ? क्या हमने देखा कि ज्यादा बढ़ चढ़ के अब जो दलित हैं वो हमारी पॉलिटिक्स का पार्ट बन रहे हैं? क्या उनकी सोशल लाइफ पे इंपैक्ट पड़ा है? क्या उन्हें और ज्यादा अच्छी जॉब्स मिली? तो बेसिकली this is a kind of structure which can be applied on any concept irrespective of which subject it is from, right? And the net result is at the time of learning, your learning is much more secure, much more strong. Second, at the time of revision, your revision becomes very fast. For example, अगर हम IIT JEE की बात करें, so if we talk about chemistry, so in the chemistry this power of this mind maps is reflected to its fullest. बिकॉज जब आप केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, जब आप बेंजीन का कंपाउंड और ये सब चीजें बनाते हैं, राइट, सो देयरफॉर यू आर एबल टू पिक्टोरियली सी दैट ओके कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरीके से फिट हो रहा है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पे जाके अटैक कर रहा है, कहां पे जाके क्या कर रहा है.
ठीक है. सो देयरफॉर दिस पिक्टोरियल डिपिक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके स्कूल में अगर कुछ भी नोट्स आपके टीचर्स दे रहे हैं, आपको डिक्टेशन दे रहे हैं, या फिर आपकी एनसीईआरटी की किताब है, उसको पढ़ने के बाद अगर आप इस तरीके से समराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स, देन डेफिनेटली डू इट. इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग which I have seen. Next point coming from mind maps is maps. ज्योग्राफी मेरा बहुत ही वीक सब्जेक्ट रहा है हमेशा, और उसका रीजन एक ये रहा है दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू like get a sense that where which particular place is. And geography is very very important for students from class 8 till class 10th. So therefore in the domain of geography what becomes very very important is, and one of the biggest problem is how to remember names of places. ठीक है. Now if you have a map at your home, ठीक है, so you can have a world map, you can have a Indian map, ठीक है. अगर उसको आप अपनी दीवारों पे चिपका लेते हैं, ठीक है, या फिर आपके पास टेक्नोलॉजी आजकल, सो यू हैव गूगल मैप्स where there is satellite views etc. भी है. तो whenever you are encountering name of any place, a very good way to feel that okay where is it exactly is simply do Google Maps. It will give you a sense. इससे क्या होगा, that image of the Google Map, the image of that place, it will get attached to the respective learnings that you are doing. तो अगर आप पढ़ रहे हैं कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू देयर वाज अ प्रोटेस्ट बाय द ट्राइबल्स, ठीक है, देयर वाज अ बिरसा मुंडा हु डिड प्रोटेस्ट, ठीक है, ऐसा हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं. सो देयरफॉर इफ यू एग्जैक्टली नो दैट वेयर इज छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इफ यू आर लर्निंग अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया कि ये वाला कंपाउंड यहां ज्यादा पाया जाता है, ये वाला कंपाउंड वहां ज्यादा पाया जाता है, या कोल यहां ज्यादा मिलता है, यूरेनियम यहां ज्यादा मिलता है, प्लूटोनियम यहां ज्यादा मिलता है. सो देयरफॉर इफ यू लुक इट अप ऑन द मैप और इफ यू मार्क इट ऑन योर मैप विच इज देयर फिजिकली प्रेजेंट इन योर रूम, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी. ठीक है, ये सब चीजें मैं नहीं करता था, तो इस वजह से ज्योग्राफी हमेशा एक तरीके से वीक रही. ठीक है. एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स की, वो है फैक्ट्स. एंड आवर फोकस कॉन्टिन्यूसली रिमेन्स दैट वी रेक्टिफाई द फैक्ट्स, है ना. उसमें ईयर्स हो गए, डेट्स हो गई, जगहों के नाम हो गए. वन थिंग विच आई लर्न इज दैट द बेस्ट वे इज टू नॉट फोकस अपॉन फैक्ट्स, because when you are simply rectifying the facts, you are basically doing rote learning. But if you follow this FAQ approach, if you follow this why kind of an approach, because इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर curiosity generate होती है. ठीक है. So if you are knowing the reasons, if you are knowing the impact of events, then the facts they become less important, and it is very counterproductive, मतलब not counterproductive, very ironical कि जब आप facts पे कम ध्यान देते हैं और आप वाई पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत आसान बन जाते हैं. अगर आपको बिहार में या झारखंड में इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर एरिया वेयर देयर इज हाई कोल डिपॉजिट, दैट इज अ फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर. बट इफ यू नो दैट व्हाई देयर इज हाई कोल डिपॉजिट, देन द नेम ऑफ दैट प्लेस बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट, और ये ऑटोमेटिकली आपके साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद रिविजन ऑटोमेटिकली इट विल कम अप. बट अगर आपका प्राइमरी फोकस ये है कि मैं इस फैक्ट को याद कर लूं, तो आप उसके अंदर से उसकी सोल जो है उसको आप निकाल दे रहे हैं. ठीक है. एंड देन यू आर सिंपली रेक्टिफाइंग दिस, जो कि एक बहुत ऑनरस और बहुत टफ टास्क है, जिसकी वजह से आपके सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स भी, जहां पे हम फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, ठीक है, सिविक्स एटसेट्रा, सब में ये चीज आपके लिए ऑनरस हो जाएगा. ठीक है. सो एक ये चीज है. ठीक है. सुधांशु ने एक सवाल पूछा है, उसको हम अभी एड्रेस करेंगे. पहले दो तीन चीजें और कर लेते हैं. एक चीज है जिसको हम कहते हैं निमोनिक्स. ये भी हमको फैक्ट्स याद करने में काफी हेल्प करता है. व्हाट आर निमोनिक्स? फॉर एग्जांपल, ऑल ऑफ यू वुड बी अवेयर विद यूनाइटेड नेशंस. देयर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनाइटेड नेशन, वी सिंपली कॉल इट यूएन. All of you are aware with the United States of America. There is a short form called USA. These are the most primitive kinds of mnemonics. That is, they are ways and means to remember big words in an easier manner. Right? So therefore, mnemonics are of multiple types. ठीक है. There are story form of mnemonics.
व्हाट इज द स्टोरी फॉर्म ऑफ न्यूमोनिक्स? स्टोरी फॉर्म ऑफ न्यूमोनिक्स इज, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जब वर्ल्ड वॉर 1 आता है, तो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले कुछ कुछ इवेंट्स हुए हैं, ठीक है। जस्ट आपको एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो मैंने एक न्यूमोनिक बनाया इस चीज को याद करने के लिए। क्या न्यूमोनिक बनाया? तो मैंने इमेजिन किया कि मैं एक कंपनी में काम करता हूं, ठीक है, और मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई है और मेरे बॉस ने मेरे को अपने कमरे में बुलाया। जब मैं अपने बॉस के कमरे में गया तो माय बॉस वाज ड्रिंकिंग अ कॉफी, और उस कॉफी के ऊपर लिखा हुआ था ब्रू, मतलब वो ब्रू कॉफी पी रहा था। और मैं हैरान था कि मैंने देखा कि उसके साथ 12-13 उसके बच्चे भी थे। और जब मैं जैसे ही उसके कमरे में घुसा, उन सब लोगों ने मेरे को 11 बार अच्छे तरीके से चप्पलें मारी, ठीक है, और उन्होंने मुझे मार दिया। ठीक ठीक है। अभी क्या इससे हमें क्या पता चलता है? तो मैंने बोला मेरे को ब्रू कॉफी पीते हुए बॉस ने ब्रू कॉफी पीते हुए बॉस ने 11 बार अपने 12-13 बच्चों के साथ, बालकों के साथ अच्छे से मारा। ठीक है, तो मैंने एक कहानी बना ली। अब असलियत में ये पता है क्या है? ये जो मेरे को है, ये पता नहीं आप शायद स्कूल में ना पढ़े, पर जैसे ये मेरे को है तो क्या था? ये था मोरक्कन क्राइसिस। ठीक, और मोरक्कन क्राइसिस, तो मैंने एक न्यूमोनिक बनाया याद करने के लिए, मोरक्कन क्राइसिस, क्राइसिक्स 1906। तो ये कब हुआ था? 1906 में हुआ था। ठीक, तो मैंने फन तरीका बनाया इसको। ब्रू कॉफी पीते हुए बॉस ने, तो ब्रू क्या था? ब्रिटेन रशिया एग्रीमेंट एक हुआ था 1907 में। ठीक, अब ये क्या था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप न्यूमोनिक की पावर देखो। ठीक है, बॉस ने, तो क्या हुआ था कि बॉस्नियन क्राइसिस एक हुआ था। कब हुआ था? बी लुक्स लाइक एन 8, 1908। मैंने अपने लिए फन बना लिया और मेरे को याद रह गया 11 बार। 11 क्या था? 11 अगारा एक चीज हुई थी जिसको हम कहते हैं अगादीर क्राइसिस। ठीक है, ये कब हुआ था? 1911 में हुआ था। अगादीर क्राइसिस, अगारा 11, 1911। 12-13 बालकों के साथ। तो क्या हुआ था? 1912 में, 1912 में फर्स्ट बाल्कन वार हुई थी, और 1913 में सेकेंड बाल्कन वॉर हुई थी। ठीक है, और उसके बाद तो ये क्या हो गया? 12-13 बालकों के साथ, बालक, बाल्कन, बाल्कन 1912, 1913 अच्छे से मारा। तो फाइनली क्या होता? 1913-14 के आसपास में आर्च ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी वॉज असैसिनेटेड। ठीक है, तो अच्छे से आर्च ड्यूक, अच्छा, तो मतलब उस तरीके से। तो इसमें क्या है, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि जब मेरे को मुश्किल लगा कोई एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिमेंबर करना, तो मैंने कुछ इमेजिन किया। ठीक है, कि इनके शब्दों को देखते हुए मैंने कुछ इमेजिन किया, एंड देयरफॉर आई रिमेंबर दिस, और मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो इससे मैंने क्या किया? मैंने अपनी पढ़ाई को एक फन भी बना लिया। ठीक है, सो थिंक ऑफ एनीथिंग वियर्ड and you can utilize the story form of mnemonics to improve your memorization. Memorization में facts में एक और चीज मैंने ध्यान करी। क्या मैंने ध्यान करी? भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्कूल में हैं, अब हमें थोड़ी पता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कुछ था। हम तो स्कूल में हिस्ट्री क्लास अटेंड कर रहे थे और उस टाइम पे किसी ने बोला फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फिर उन्होंने बताया कि ये हुई थी 1789 में। ठीक है, अब हमको याद करनी पड़ गई दो चीजें, फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फिर ये याद करना पड़ गया कि ये हुआ था कब? 1789 में। और प्रॉब्लम क्या बच्चों को आती है कि हमें साल याद नहीं होते, वी आर अनेबल टू रिमेंबर द ईयर्स। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? बड़ा कॉमन सेंसिकल अप्रोच है।
बड़ा सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाला अप्रोच है. आई ऑब्जर्व माई सेल्फ एंड मैंने देखा कि अच्छा यार मेरे को अगर ये सिंपली बताते कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, ताकि जब भी मैं, आपका कोई दोस्त है, दोस्त का नाम है सुमित, तो इसलिए आप उसको जानते हो ना सुमित. अगर आपके दोस्त का नाम होता हाय आई एम सुमित 1976, तो आप कहते यार अच्छा यू आर सुमित 1976, तो आप अपने फोन में भी उसका नाम यही स्टोर करके रखते सुमित 1976. ठीक है. नाउ इमेजिन सुमित्स पेरेंट्स वर मैरिड इन 1976. ठीक है. तो आपको कभी कुछ भी, या फिर सुमित 1991, तो सुमित अगर 1991 में पैदा हुआ, इमेजिन करो उसका नाम है सुमित 1991, तो क्या आपको कभी भी ये याद रखना पड़ेगा कि सुमित कौन से साल में पैदा हुआ था? उसका नाम ही वो है. तो देयरफॉर वेरेवर यू एनकाउंटर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अपने पेन से, अगर यहां लिखा हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन और अब बाकी आगे सेंटेंस चल रहा है, अपने पेन से कॉपी के अंदर जितनी बार फ्रेंच रेवोल्यूशन आए उसके ऊपर ब्रैकेट्स में 1789 लिख दो. अपने लिए उसका नाम फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 बना लो हमेशा हमेशा के लिए. इससे आपकी सालों को याद करने की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी. ठीक है. एक और एक चीज है, दिस इज रिगार्डिंग रीडिंग्स. In my school time, I developed a habit, ठीक है, which was a mistake. I developed a wrong habit, and the wrong habit was that whenever I would read anything, I would read a book only once during the, जब वो क्लास चल रही होती थी और पढ़ाया जाता था स्कूल में, and the second time I used to read is, in fact दूसरी बार भी कभी नहीं पढ़ता था. वो क्लास में जो नोटबुक होती थी बस वो ही पढ़ता. तो एक तरीके से किताब जो थी पूरे साल में सिर्फ एक बार पढ़ी जाती थी. इट वॉज नॉट रेड अगेन एंड अगेन. बट ड्यूरिंग माई यूपीएससी प्रिपरेशन एक चीज मेरे को रियलाइज हुई, दैट बुक रीडिंग इज अ वेरी वेरी पावरफुल फॉर्म ऑफ लर्निंग. एंड द पावर कम्स इन व्हेन यू आर रीडिंग द बुक फॉर द फर्स्ट टाइम. इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट व्हाइल रीडिंग इट फॉर सेकेंड टाइम. And even that second time is completely different when what you understand by reading it for the third time. So therefore, अगर आप ये बचपन से अपने क्लास 8 से ही आप एक ये चीज अपने अंदर हैबिट इनकलकेट कर लेते हैं, दैट यू ट्राई टू रीड अ बुक मल्टीपल टाइम्स, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप पहली बार बुक पढ़ रहे होंगे, व्हेन यू आर रीडिंग द बुक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर लाइक सिंपली रीडिंग इट, यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड अ लॉट. इट इज फाइन because you know you are going to do that understanding in the second reading, but at least 40% तो हमें समझ में आएगा. फायदा इससे क्या होगा, that at least उस 40% का हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि अच्छा ओवरऑल ये मेरा सिलेबस है, और आपको एक एज महसूस होगी अपने बाकी सारे स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली, दैट ऑल्दो वी शुड नेवर कंपेयर, बट एक एज महसूस होगी कि अच्छा मेरे को इस पूरे साल का सिलेबस पता है. ठीक है. उसको एक, अगर आप अपनी बुक रीडिंग की हैबिट बना सकते हैं, ये आपको हर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा काम आएगी. ठीक है. सो वी हैव अ क्वेश्चन इज, सुधांशु इज आस्किंग, आर्ट्स और साइंस, which stream is best for UPSC? Why most of the people choose non-science or non-technical subjects as their optional subject? So Sudhanshu, actually arts are a much better optional for UPSC. उसका reason ये है that first of all your UPSC syllabus, it is divided into general studies which we call GS, and you have 4 papers in it. Also there is a essay, and then lastly it is your optional. So problem is कि if you take optional which is from the science background, still you would have to read about the non-science subjects, because you have to give the GS exams and you have to write an essay, and therefore many of the students they choose a non-science subject like public administration, geography, sociology, psychology, बहुत सारे subjects हैं, ताकि इन दोनों के बीच में कोहेरेंस आ जाए. तो एक तो ये हमारी डबल मेहनत चली जाती है. दूसरा क्या है कि यूपीएससी सिलेबस इज चेंजिंग every 5 years, every 10 years. UPSC changes its syllabus. Earlier there used to be 2 optionals. Now there is only 1 optional. ठीक है. So therefore if this optional is gone, then what you will do, you are only left with the art subjects. तो इस वजह से ये रहता है. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है,
and obviously the non-science optionals they are comparatively easier compared to the science optionals because उसके अंदर वो IIT JEE जैसा एग्जाम नहीं होता है, उसके अंदर थियरीज, मैथ्स की थियरीज, फिजिक्स की थियरी जो कि शायद से किसी को उतनी अच्छी ना लगे वो सब आती है. सो इस वजह से लोग जो है ऑप्शनल नॉन साइंस वाला लेते हैं. अमन इज आस्किंग, अमन अम्बस्ट इज आस्किंग हाउ टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी इन स्टडीज. आ रहे हैं उस पर अमन. ठीक है. सो देयरफॉर दैट विल बी माय रिकमेंडेशन टू स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ इन क्लास 8, क्लास 9. खास करके सबसे ज्यादा जो मैं एम्फेसिस दूंगा वो मैं इस माइंड मैप पे एम्फेसिस दूंगा. प्लीज डू इट, बी इट योर फिजिक्स, बी इट योर मैथ्स, बी इट योर केमिस्ट्री. Try to have pictorial depiction and therefore it will help you a lot. You are reorganizing the information जिससे मेमोरी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है. एंड सेकेंड, आपकी रिविजन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी. तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम है दैट इट टेक्स टाइम टू रिवाइज, आई हैव टू रीड, आई वाज वाचिंग द यूट्यूब वीडियो सो मेनी वर सेइंग दैट आई हैव टू रीड द बुक अगेन, व्हाट कैन आई डू टू प्रिवेंट रीडिंग द बुक अगेन. तो अगर आपने अपने खुद के इस प्रकार के नोट्स बना रखे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलती है. ठीक है. कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं. कुछ और चीजें हैं. क्या चीजें हैं? सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया था, टू बिगिन विद आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट. इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द वेरी एवरेज एंड वेरी पैथेटिक काइंड ऑफ अ स्टूडेंट एंड आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट. बट देन आई स्टार्टेड डिवोटिंग माई सेल्फ एंड देन क्लास 10th में आई गॉट अराउंड 81%. कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे. हालांकि मेरे टाइम पे, ये टाइम है 2004 का, तो उस टाइम पे 81% अच्छे मार्क्स माने जाते थे. वैसा नहीं था कि अब सबके 97-98% आ रहे हैं. ठीक है. बट देन व्हेन आई एंटर्ड द प्रिपरेशन फेज फॉर IIT JEE, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम आई. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम इज दैट स्टडीज टिल क्लास 10th दे आर रिलेटिवली वेरी इजी and then there is a quantum jump, there is sudden jump. और जब बच्चा 11th क्लास में आता है वो इतना परेशान हो जाता है, उसको सब कुछ इतना ज्यादा टफ लगने लगता है that there is a clear distinction. Point is that many students who used to consider themselves as toppers or as very good in studies, they are suddenly getting very low marks in class 11th and class 12th. So therefore there is a huge transition जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में जाते हैं. Same problem was experienced by me. And in fact एक पूरा का पूरा साल for the whole of class 11th I felt so demotivated that कि मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है. If I am going to a coaching institute where I am attempting test, मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे. In the school also I am unable to understand anything. Forget about IIT JEE, मुझे CBSE वाला भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज पढ़ा रहे. ठीक है. तो therefore but change started coming in because I continuously strived hard in my class 11th. And then when I went to class 12th, तो ऐसा होता था कि मैं क्लास 12th में क्लास 11th का खुद से पढ़ रहा होता. सो देयरफॉर क्या लर्निंग है वहां पे जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं कि किस तरीके से फिर ऐसा हुआ कि मैंने IIT JEE मेरा आ गया उसके अंदर. सो द फर्स्ट इज पावर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट इन टूडेज टाइम when students they are having such problems or such doubts कि for example how to manage the school time. because मैं I was looking through some of the time tables, तो कुछ बच्चे हैं जिनका स्कूल 8 बजे स्टार्ट हो जाता है, कुछ बच्चे हैं जिनका स्कूल 9 बजे स्टार्ट हो जाता है एंड 9 बजे से लेकर 2 बजे तक वो उसमें है. सो मल्टीपल उन्होंने टाइम टेबल्स वगैरह बना रखे हैं. तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले पावर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन को देखो. व्हाट इज दिस पावर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन? एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल. Every student has a mind of its own. Something might work for student A, that thing might not work for student B. ठीक है. इसमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत काम आती है. व्हाट इज द सेल्फ ऑब्जर्वेशन? अगर हम टाइम टेबल की बात करें, सो मैंने कुछ टाइम टेबल्स देखे. ठीक है. तो मैं भी वैसे ही टाइम टेबल्स बनाता था. कैसे टाइम टेबल बनाता था? सो मैं कहता था अच्छा 8 AM till your 2 PM school. Then I would say 2 PM to 2:30 PM rest and food, right? Then I would say that from 2:30 PM
to 3:30 p.m. assignment of school. Then I would say that from 4 p.m. till 6 p.m. Infinity classes or any other coaching institutes classes. Then I would say 6 p.m. to 7 p.m. I would say outdoor activities, or let's say badminton. Then I would say 7 p.m. to 7:30 rest or bathe. Then I would say 7:30 p.m. to 8:30 p.m. or 8 p.m. dinner. And then I'll say 8 p.m. till your 10 p.m. infinity assignments. Right? And then 10 p.m. to 10:30 p.m. time with family, and then again let's say 10:30 p.m. till 12 p.m. I would say novels, that I'll read novels. Even I used to make such, even I used to make such timetables. What is lacking here is power of self observation. तो मैंने ऐसे ही एक टाइम टेबल बनाया हुआ था, एंड वी हैड अ सिटिंग एमएलए, मतलब उस टाइम पे कोई एमएलए थे हरियाणा के, सो ही हैड कम टू होम. Right, he had come to home and he looked at my timetable, and in my timetable this 8 a.m. was not 8 a.m. this was 4 a.m. and he was like, flabbergasted. मतलब he was so surprised कि अच्छा, and he was asking my father कि यार तेरा बेटा तो कहते हैं बहुत मेहनत करता है. In reality, I could not follow this timetable even for a single day, because this timetable, it is not based on how I operated. ठीक है, तो जो भी आप टाइम टेबल बनाओ उसको फॉलो करने के लिए आप फॉलो करने की कोशिश करो, बट उसके बाद आप उसको अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करो. बिकॉज क्या होता है, हम अपने टाइम टेबल में अपने आप को एक मशीन समझ लेते हैं, ठीक है, और हम इस तरीके से अपना पूरा का पूरा दिन इतना ज्यादा स्ट्रक्चराइज कर जाते हैं कि वो कभी फॉलो हो ही नहीं सकता. ठीक है, वो कभी फॉलो हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो टाइम टेबल की प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व करो आप? 2-3 प्रिंसिपल हैं टाइम टेबल के. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि आप एक तो अपने आप को बकेट दो. मतलब एक हम अगर बड़े उससे बिगिन करें, दैट इज हैव बिग बकेट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिग बकेट? हमको ऐसा नहीं करना है कि हम किसी भी चीज में अपने आप को आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए इस तरीके से बांधें. ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू हैव बिग बकेट्स, मतलब मिनिमम ऑफ 2 hours. So therefore, if I am allocating my time for physics or for anything, then at least it should be for 2 hours. ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना है कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांध दिया. हम कोई मशीन नहीं है. ठीक है, हमारा दिमाग खुद से काम करता है, हमें खुद से पता चलता है, हमारा माइंड हमको खुद बताता है कि अच्छा इस वाले टॉपिक में हमें कितना टाइम लगेगा. एक और दूसरा इसका इशू है कि व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट, तो बहुत प्रॉब्लम आता है. For example, if you are saying that I am going to study for 2 hours physics, and then for the next 1 hour I am going to study chemistry, then for the next 1 hour I am going to study maths, इतना frequently आप अपना नहीं change कर सकते. आपका mind वो physics में घुसा हुआ है and suddenly you cannot shift to chemistry. ठीक है, तो एक तो आपको बड़े buckets बनाना है. In fact, I would recommend that instead of allocating multiple subjects within a day, आप multiple subjects के बजाय single subject जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप फोकस करें. तो आप ऐसे एलोकेट करें कि आज का जो दिन है वो मेरा फिजिक्स का है. मतलब कि अगर मेरी स्कूल की क्लासेस हो रही हैं या फिर मेरी इन्फिनिटी की क्लासेस हो रही हैं, वो हो सकता है किसी और सब्जेक्ट पे हो रही हो, बट अदरवाइज फॉर माई सेल्फ स्टडी इट इज गोइंग टू बी माई सिंगल सब्जेक्ट. बिकॉज देन यू हैव एन ऑप्शन टू गो डीप इन टू दैट सब्जेक्ट. आप उसको सब्जेक्ट को ज्यादा अच्छे से तरीके से पढ़ सकते हो, उसको अपने आप को आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट में काफी वीक हो. ऐसा हो सकता है कि आप टेबल पे बैठे, आपने अपने लिए सिर्फ 1 घंटा एलोकेट किया था और आप बैठे ही रह गए क्योंकि आप प्रॉब्लम नंबर 1 को ही नहीं समझ पाए. तो इस तरीके से हमें अपने आप को बेड़ियों में नहीं बांधना है. इनफैक्ट बेटर स्ट्रेटेजी ये है, मैं तो यही करता था, आई यूज्ड टू एलोकेट दैट फॉर दीज 2 days आई एम गोइंग टू स्टडी फिजिक्स, और बाकी जो मेरी क्लासेस हैं वो हो सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट पे हो रहे हो. ठीक है, तो एक तो ये प्रिंसिपल फॉलो करना है.
दूसरा प्रिंसिपल क्या फॉलो करना है, अगर हम टाइम टेबल बना भी रहे हैं, देन यू शुड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ एडिंग बफर्स बिफोर एंड आफ्टर, और कितने का, कम से कम हाफ एन आवर का, because it is very natural. If you are studying for 2 hours, let's say you are studying physics for 2 hours, and after that if you expect yourself to suddenly do something else, it will not happen. आप खड़े हो गए, आप एक अंगड़ाई लोगे, आप जाके एक पानी का ग्लास लोगे, ठीक है, कुछ चाय पियोगे या कहीं बातों में लग जाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो चीज गलत है. आपको कम से कम आधे घंटे का बफर उससे पहले और आधे घंटे का बफर उससे बाद अपने आप को देना है. बिकॉज टू शिफ्ट फ्रॉम वन सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट आपको इतना टाइम लगेगा ही लगेगा. ये ऐसे टाइम टेबल आप कितने भी बना लो, ये फॉलो नहीं होंगे, और ऐसे टाइम टेबल का फायदा ही क्या है जो फॉलो ना हो पाए. एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, व्हाट इज रोल ऑफ द टाइम टेबल. एक बहुत फेमस किताब है, इट इज अ बेस्ट सेलर, उसके टाइटल में आता है नज. The role of the timetable is to nudge you. That is, it is an indicator to tell you that whether you are wasting time, that whether overall you are on a path or you have deviated a lot. You make a timetable so that you do not become lax. आप इसलिए टाइम टेबल बनाते हो ताकि आप एक फोकस तरीके से आप काम कर सको, और ऐसा ना हो कि आपकी पढ़ाई किस दिशा में जा रही है, कोई आपका स्ट्रक्चर ही नहीं है. बट अल्टीमेटली हमें यह याद रखना चाहिए कि इसका काम सिर्फ एक नज प्रोवाइड करने का है. इसका काम सिर्फ एक ये इंडिकेटर प्रोवाइड करने का है कि बेटा उठ जा, अब तेरे पढ़ने का समय हो गया है, या फिर अब तुझे ये पढ़ना है. बस इतना ही उसका रोल है. क्योंकि एक मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कैन टाइम टेबल्स दे रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस? They can. Because in this competitive world, in this competitive environment, if we are making such harsh timetables and then we are unable to follow it, तो हम अपनी ही आंखों में गिर जाएंगे. We'll be a failure in our own eyes. And trust me, there can be nothing bad than being a failure in your own eyes. So therefore, you have to make such timetables which are realistic. You have to observe yourself that okay, आपका जो ऑपरेटिंग स्पेस है, आपका जो दिन है, उसके अंदर आपकी क्या एक्टिविटी रहती है, आपका मेंटल मेकअप किस प्रकार का है, आप कितनी जल्दी शिफ्ट कर सकते हैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, या फिर जब भी आप ब्रेक लेते हैं तो कितनी देर में आपको फ्रेश फील होता है. ठीक है, सो देयरफॉर ये हमें एंश्योर करना है कि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन ना जाए और किसी अपने ही एक्शन की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस डाउन ना जाए. So therefore do not be very strict with your timetables. Have a timetable जो कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करे. कॉन्फिडेंस कब इंक्रीज होगा? जब आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे. ठीक है, तो हमें टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसको हम फॉलो कर पाए. ठीक, एक और एक चीज है टाइम टेबल के रिगार्डिंग, एक और एक चीज है, एक प्रिंसिपल है, उसको याद कर लो. सो लेट देयर बी मिनिमम टाइम. बट नॉट मैक्सिमम टाइम. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग लेट्स से मैथ्स, and when you are studying this math, you have allocated 2 hours to you. Okay, so the role of the timetable should be that you sit at least for 2 hours for doing the maths. ठीक है, but what if you reach a stage where you do not come to know that 2 hours have passed, or what if you reach a stage जहां पे आपको 2.5 घंटे हो गए हैं and you are still feeling like यार मेरे को इसमें ना एक फील आ रही है, and मतलब मुझे को और करना है. I can sit, you have a feel that you can sit for longer. Your mind is telling you, my friend, that ultimately you have been able to reach that stage in that subject or in that chapter or within the topic of that chapter, that now you have generated interest in that topic.
and your mind is telling you that okay, there are some challenges in the form of these questions or in the form of these theories or examples which I can solve. Your mind is engrossed, so therefore do not negate the science from your mind and continue. Forget the timetable. अगर आप 2 घंटे से ज्यादा आपका मन कर रहा है पढ़ने का, आप पढ़ पा रहे हो, आप उसमें इतने ज्यादा एनग्रोस्ड हो, तो उस फ्लो को आप ब्रेक मत करो. ठीक है. सो दिस इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल. और ये कहां से आया था? ये कहां से आया था पता है? मैं क्या करता था? आई यूज्ड टू हैव दिस टेबल क्लॉक, हाउ टू मेंटेन, बिकॉज एक क्वेश्चन भी आता है ना कि हम दिन में कितना देर पढ़े. ठीक है. सो फ्रैंकली अगर आप दिन में ऑन टेबल, दैट इज ऑन योर चेयर एंड at your study table, if you are able to study apart from the school, if you are able to study for 6 hours effectively, that is enough. But these 6 hours are of only studying. They do not include you going to have water, they do not include you going to a toilet, they do not include you having lunch, they do not include कि आप पढ़ रहे थे और आपके पेरेंट्स जो है आ गए और आपसे कुछ बात करने लगे तो 10 मिनट वहां चला गया. So these are not for any talk or any chit chat. Only study का मतलब यह है कि तब आप अपना WhatsApp नहीं देख रहे थे. ठीक. और मैं इस चीज को कैसे मेंटेन करता था? When you're studying on the table, then you cannot have any mobile with you, you cannot have any of these things with you. उसको आपको स्टीयर क्लियर करना है, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर रहे. इफ यू आर कॉन्स्टेंटली गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, इनफैक्ट मैं तो ये करता था दैट इफ माई फ्रेंड इज ऑल्सो हैव टू, आई यूज्ड टू एलोकेट टाइम कि यार अगर फोन पे बात करनी है देन दिस इज द टाइम 6 PM to 7 PM, इस टाइम पे बात करेंगे. एंड जितने भी डाउट सारे दिन के इकट्ठे हो रखे हैं वो हम उस 1 घंटे में एक दूसरे से बात करके रिजॉल्व कर लेते. बिकॉज ये चीज बिल्कुल गलत है अगर बीच बीच में व्हाट्सएप आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये चीज गलत है, आपको कहीं नहीं लेके जाइए. इवन इफ दैट व्हाट्सएप इज रिलेटिंग टू स्टडीज, इवन इफ योर फ्रेंड इज आस्किंग यू डाउट रिलेटेड टू स्टडी, डू नॉट एंटरटेन इट. अलॉट अ टाइम कि यार तू अपने सारे डाउट्स इकट्ठे कर ले, शाम को इस टाइम पे बात करेंगे, अच्छी लंबी बात करेंगे, आधा पौना घंटा बात करेंगे, बट यही है, उससे ज्यादा नहीं करना है. नहीं तो आपकी स्टडीज बहुत इंपैक्ट होंगी. यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म दिस कॉन्सेंट्रेशन. सेकेंड पॉइंट आता है दैट हाउ टू एंश्योर दैट आई हैव स्टडीड फॉर 6 hours. इज इट नॉट पॉसिबल दैट आई स्टार्टेड स्टडिंग एट 2 PM एंड आई वाज देयर स्टडिंग टिल 10 PM, तो हम बड़े खुश हो गए कि आज हमने 8 घंटे पढ़ाई कर ली. मैंने इसका अपने ऊपर एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन का एक्सपेरिमेंट निकाला. एंड व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट? आई हैड अ टेबल क्लॉक. ठीक है. तो एक टेबल क्लॉक मेरे पास थी और इसके पीछे एक बैटरी थी, सेल था. मैं क्या करता था, जैसे ही मैं टेबल पर पढ़ने बैठा, आई वुड टेक आउट द बैटरी सेल. ठीक है. तो लेट्स से मैं 3 बजे पढ़ने बैठा हूं, मेरी घड़ी में 3 बजे हुए. इन रियलिटी क्या टाइम हुआ? इन रियलिटी भी 3 बजे हुए. ठीक. अब क्या हुआ? आई स्टडीड फ्रॉम 3 PM to 4 PM. In my watch there is 4 PM. In reality also there is 4 PM. But now I have taken a break. I am going to have a tea with my mother. So therefore मैं इसका सेल यहां पे निकाल दूंगा. ठीक. In reality now when I have completed my tea, in reality it might be 4:45 PM. But in my clock it is what? 4 PM. And now I'm again on my table and I am studying. I will reinsert the battery into it. Let's say I again studied for 1 hour. In reality time will be 5:45. I again took a break of let's say 1 hour. ठीक है. So in my clock time will be 5 PM only, but in reality time will be 6:45. In my room I used to have no other clock. मेरे रूम में सिर्फ ये घड़ी होती थी. नेट रिजल्ट ये होता था कि जब रात के 10 बजे होते थे तो ऐसा होता था कि इन रियलिटी रात के 10 बजे हुए हैं, बट मेरी घड़ी में सिर्फ 7 बजे हुए हैं, जिससे मुझे क्लियरली पता चल जाता था कि ओवरऑल मैंने 3 घंटे मतड़गश्ती करी है एंड ओवरऑल जो मैं है सिर्फ 4 घंटे ही पढ़ा हूं.
और उससे क्या होता था, उससे मुझे एक नज मिलता था, उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती थी कि नहीं अभी 3 घंटा और पढ़ना है। और जब पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया और एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे लग रहा है अभी तो शाम के बस 6 ही बजे है, मतलब मैं सवेरे 6 बजे पढ़ना स्टार्ट किया था और मेरी घड़ी में शाम के 6 बजे हुए थे, मतलब मैं 12 घंटे पढ़ चुका था ऑन टेबल। और मैं इतना मशगूल था कि मेरी मम्मी ने दरवाजा नॉक किया एंड शी इज लाइक कि यार तुम डिनर कब करोगे। मैंने कहा क्या हुआ, कहते बेटा रात के 12 बज रहे हैं। आई एम लाइक व्हाट, that is, so that's why I say that time is a perception. Time is a perception. So therefore change your perception, be something like this, be engrossed. You have to start loving your subjects. And how do you love your subjects? When you have interests, when you have interest in a subject. Okay, we have a couple of questions. Aryan Tripathi is asking, if we study a topic and it seems interesting and we go studying that topic the whole day, it will be brilliant. It does not contribute to having equal time giving to every subject. Please suggest something on this. Why? It is brilliant. If you are in that zone, Aryan, ye samajh lo, you are in the zone of success. You are connected to the subject and you are connected to yourself. हो जाएगा, सब हो जाएगा। अपना एग्जाम्पल बताता हूं। माई एग्जाम्पल इज कि क्लास 11th में कुछ भी समझ में नहीं आया आर्यन, ना फिजिक्स समझ में आया, ना केमिस्ट्री समझ में आया, ना मैथ समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्लास 12th में एक तो लाइफ में एक टीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मेरे एक टीचर थे फिजिक्स के, उन्होंने मुझे 2 चैप्टर पढ़ाए कोचिंग में। इट वॉज मोमेंटम, ठीक है, और वो इन्होंने इतने सही तरीके से पढ़ाए कि समहाउ जो मेरे दिमाग में डाउट्स आते थे वो उन्होंने क्लैरिफाई किए। ठीक, तो उससे क्या हुआ, मुझे पहली बार ऐसा कुछ अपनी प्रिपरेशन में मिला कि यार ये मेरे को समझ में आया, अदरवाइज आई वाज कंप्लीट डम्ब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेहनत में कर रहा था पर समझ में नहीं आ रहा था। तो देयरफॉर उनसे मैंने पूछा कि सर क्या, तो उन्होंने बताया एक किताब है एच.सी. वर्मा, तुम उससे पढ़ो। सो आई, मतलब जब क्लास 12 थी तब मैं 11th क्लास की एच.सी. वर्मा पढ़ रहा था और मैंने उसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, क्योंकि मेरे दिमाग में आई वाज कंप्लीटली जीरो एक्सपेक्टेशंस, राइट। सो देयरफॉर मैंने एच.सी. वर्मा पढ़ना स्टार्ट किया एंड एच.सी. वर्मा पढ़ना स्टार्ट करते 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 मैं उस फिजिक्स में ही लगा रहा, ठीक है। सो साथ साथ में जो भी कोचिंग वगैरह में चल रहा है, बट माई सेल्फ स्टडी इट इज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन फिजिक्स। What was the one big positive? For the first time in my this student career for IIT JEE preparation, I found that okay, I understand something. That gave me a lot of confidence, and that confidence, it helped me when I now started approaching chemistry and maths with a sense of confidence कि यार मैं कर सकता हूँ, right? And in the domain of physics, if I structured my subjects a lot, then probably हो सकता है मैं उस डेप्थ में जा ही नहीं पाता। And now my 4 to 5 chapters of physics, they were done, right? और वो बहुत चीज आई। अच्छा, मुझे 2-3 चीजें याद आ रही हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे स्टार्ट करें। वो जो क्वेश्चंस थे, अच्छा, आई हैव दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा सही है, ठीक है, तो ये करना है आर्यन। उसके बाद एक और सवाल पूछा है, देवांश ने पूछा है, देवांश त्रिवेदी इज आस्किंग, सर अभी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे स्टॉप करें, बिकॉज इन ऑनलाइन स्टडी देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, हाउ डू आई स्टडी। उसका मैं तुमको एक चीज बताता हूं। क्या चीज बताता हूं, ये पॉइंट आ जाता है, ये 2 पॉइंट्स आ जाते हैं।
डिवाइन टाइम, पावर ऑफ फ्रीडम। अब ये कहोगे यार क्या ज्ञान चल रहा है यहाँ पे? कुछ ज्ञान नहीं चल रहा मेरे भाई। क्या हुआ कि आई लिसन टू माई मदर, ठीक है, एंड उन्होंने मेरे को बोला कि यार तू सवेरे उठ, ठीक है। सो चाहे हम अपने शास्त्रों को देख लें, चाहे हम अंग्रेजों को सुन लें जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, देयर इज दिस टाइम पीरियड ऑफ 4 AM to 6 AM। हमारे शास्त्रों में इसको ब्रह्म समय कहा गया है, ठीक है, या डिवाइन टाइम कहा गया है। इन दिस 4 AM to 6 AM इट इज सेड, जो हमारा ब्रेन है इट इज हाईली रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज, इट इज very very powerful in functioning. Doubts which will usually not get cleared in the rest of the day, they will get cleared in this time. So if it is possible, and I know आजकल की जनरेशन के लिए नहीं है possible, in fact मैं भी आजकल जब कोशिश करता हूं उठने की तो बहुत रेयरली ऐसा हो पाता है मैं उठ पाऊं, बट अगर जस्ट इन केस अपने पेरेंट्स की मदद से आप सवेरे 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे अगर उठ सकते हैं तो आपको अपना एक तो दिन बहुत ज्यादा लंबा लगता है, ठीक है। जब आप सवेरे जल्दी उठते हैं आपको अपना दिन बहुत ज्यादा लंबा लगेगा, दैट इज वन थिंग। सेकेंड पॉइंट इज, जब आपका स्कूल का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अवेक एट 4 AM और इफ यू आर अवेक एट 5 AM, तो चलो 5:30, 5:40 तक यू कैन बी देयर ऑन योर स्टडी टेबल इन दिस वेरी हाईली एफिशिएंट टाइम। If your school starts, let's say at 9 AM or it starts at 8:30 AM, then you have got clear cut 3 hours. 3 hours है तो उसमें मैंने बोला बफर, so half an hour हटा देंगे. You have at least 2.5 hours of studying. You have one option that in those 2.5 hours you dedicate yourself fully to the online classes. ठीक है, to the online classes. And once your online class is over at 2 PM, you take a decent break of 1 hour. But then you say, I have power of freedom. What is this power of freedom? That is after 3 PM, no school. That is, you will not be doing any school related assignments after 3 PM. After 3 PM, you will not be thinking about school at all. आपका सारा का सारा टाइम किस पे जाएगा? आपका सारा का सारा टाइम जाएगा IIT JEE की प्रिपरेशन पे। इसके अंदर चाहे आपकी इन्फिनिटी की क्लासेस हो गई, चाहे आपका सेल्फ स्टडी हो गया। आप अपने आप को इस टाइम टेबल की बेड़ियों से आजाद करोगे और आपको एक फ्रीडम महसूस होगी कि अच्छा अब मेरे पास पूरा अपना टाइम है। एंड व्हेन यू आर इन सिंक विद योर माइंड, you will pick up a subject, let's say physics or chemistry or maths, and you will feel this sense of confidence that from 3 PM till 10 PM मेरे पास 7 घंटे हैं, इसमें अगर 2 घंटे की क्लास भी होगी तो मेरे पास 5 घंटे हैं, कम से कम मेरे पास ऑन टेबल स्टडी के 3.5 घंटे हैं या जो भी है, और मैं ये पूरा दिन अब बेसिकली मेरे पास है और मेरे को कोई लोड नहीं है। जो स्कूल से रिलेटेड असाइनमेंट्स थे वो मैंने सवेरे जितने कर लिए उतने कर लिए, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द वे। तो डिस्ट्रैक्शंस जो ऑनलाइन स्टडी के कारण हो रही हैं उनको टाइम वाइज लिमिट कर दो, ठीक है। एक और दूसरा ऑप्शन है, आप कहो कि आई विल वेक अप एट 4 AM और 5 AM एंड टिल माई स्कूल स्टार्ट्स आई विल बी फोकसिंग ऑन इन्फिनिटी और आई विल बी फोकसिंग ऑन IIT JEE, ठीक। सेकेंड चॉइस दैट यू कैन मेक, जैसा कहता है आकाश ने भी बताया था, if you are studying physics, chemistry, maths for IIT JEE, is it not very very natural that for NCERT or for CBSE or for whichever board physics, chemistry, maths जो है वो हो ही जाएगा? Why to waste your time on classes of PCM of school level when you are devoting yourself completely and very dedicatedly to IIT preparation? By doing this, you will be able to take out some hours from that 8 AM to 2 PM schedule. And in those hours you can practice papers of PCM or you can study your own self. So that is also a way to remove your distractions, ठीक है। that is also a way to remove your distraction, because सीधी सी बात है, हमें ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं फंसना है कि अच्छा ये NCERT है, ये IIT है, कुछ नहीं है, सिर्फ फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है। चाहे क्वेश्चन इजी पूछे जाए NCERT जैसे या टफ पूछे जाए IIT JEE जैसे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। सो ऑनलाइन स्टडी का आप ये तरीके अपना सकते हैं कि जो PCM है स्कूल का, मैं तो नेग्लेक्ट कर देता था और मुझे वो क्लास में कभी चैलेंज करते थे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते थे, क्योंकि देखो स्कूल का एक सेल्फ इंटरेस्ट है। स्कूल चाहता है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो उनको 100%, 99%, 98% लाके दें, ताकि स्कूल का अपना एक
प्रोफाइल इंक्रीज हो, वो आपके इंटरेस्ट में नहीं सोच रहे हैं। और आजकल की खासकर की ऑनलाइन के टाइम पे वो आपको डेफिनेटली इतने सारे असाइनमेंट्स दे देते होंगे बिकॉज दे आर इनसिक्योर। उनको लग रहा है कि बच्चे हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो उन्हें कैसे बांध के रखो ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट्स देने के लिए। ठीक है, तो वो अपने इंटरेस्ट का सोच रहे हैं, आपको अपने इंटरेस्ट का सोचना है। और आपको क्या ध्यान रखना है, क्वालिटी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्कूल को धोखा दें या किसी और को धोखा दें। सिंपल पॉइंट है, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, वो कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है, अगर आप उनको अच्छे तरीके से आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन में कर रहे हैं तो बहुत नेचुरल है कि आप स्कूल वाला भी कर लेंगे, क्योंकि आप रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप समझ के कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी एक लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना टाइम कुछ कुछ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एक और दूसरी बात डिस्ट्रैक्शन से याद आई, आजकल YouTube का जमाना है। लेट्स से आपको मोमेंटम समझ में नहीं आ रहा, नाउ यू ओपन योर फोन। एक तो फोन को थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा, आपको फेसबुक से हटना पड़ेगा। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी करी तो मैंने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया, मैंने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट डिलीट कर दिया, मैंने हर चीज का अकाउंट डिलीट कर दिया। मुझे होना ही नहीं है सोशल मीडिया पे। इनफैक्ट आज के टाइम पे भी मेरा है एक फेसबुक अकाउंट, बट महीनों हो गए उस पर गए हुए, कुछ लाइफ में बिगड़ नहीं जाता है, कुछ मिस नहीं हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज है यूट्यूब। सो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक, देयर इज अ वेरी टेंडेंसी कि हम यूट्यूब पे जाके सर्च कर लेते हैं कि ये वाला क्वेश्चन या फिर ये वाला टॉपिक। और आज के टाइम पे प्रॉब्लम क्या है, देयर आर सो मेनी एजेंसीज हु गिव यू वेरी बैड, वेरी सिंपल काइंड ऑफ मटेरियल। ठीक है, विच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू फील कि अच्छा मेरा ये वाला चैप्टर हो गया। वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। उतने सिंपल क्वेश्चंस आईआईटी में नहीं आने वाले और आपने अपना 1 घंटा या आधा घंटा उसके अंदर दे दिया, और पेरेंट्स को भी ये लग गया कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। नहीं, जो काम मेहनत से होगा, जो काम एक ट्रेडिशनल तरीके से होगा, वो काम शॉर्टकट से नहीं होगा। देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेसेस। तो अगर आप एचसी वर्मा उठा रहे हैं मोमेंटम को समझने के लिए, फाइन। इफ यू आर कॉलिंग अ टीचर ऑफ इंफिनिटी की सर मुझे ये डाउट है, फाइन। ठीक है, बट अदरवाइज अगर आप यूट्यूब पे जा रहे हैं, इट्स अ बिग नो। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि उस टीचर ने क्या सारे एस्पेक्ट्स कवर करे हैं, क्या मेरा टॉपिक कब पक्के से प्रिपेयर हो गया, क्या ये कॉन्फिडेंस आ पाएगा आपको यूट्यूब की वीडियो देख के, आपको नहीं पता है। यू हैव टू हैव फेथ इन योर टीचर कि सारे एस्पेक्ट्स मेरे कवर किए जाएंगे। ठीक है, एक और बहुत अच्छी चीज है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट। एक स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर स्कूल कैसे मैनेज करें और आईआईटी कैसे मैनेज करें। एक बहुत अच्छा तरीका है, बिकॉज योर पीसीएम ऑफ स्कूल इज गेटिंग कवर्ड थ्रू योर कोचिंग, ठीक है, और योर सेल्फ स्टडी। ठीक, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, थोड़े से ज्यादा उसके अंदर थियरी होती है। आपको हो सकता है कोई थ्योरम प्रूव करने के लिए बोल दें और वैसा क्वेश्चंस आईआईटी में ना आए, तो आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के मॉक टेस्ट। ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल इंफिनिटी कराता है या फिर जिस भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, तो आप एनसीईआरटी वाला पार्ट टेस्ट के थ्रू कवर कर लो और अपना सेल्फ स्टडी का पार्ट और पढ़ाई का पार्ट आप आईआईटी के थ्रू ही कवर करो। तो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपकी ये दुविधा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर आप एनसीईआरटी पैटर्न वाले मॉक टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने सीबीएसई में या फिर AIEEE में या किसी में भी उसमें आप अच्छा करोगे, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस हमको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। सुधांशु, अच्छा बाकी सारे डाउट्स हो गए। ठीक है, तो ये चीज हमें रखनी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपका कि नोट्स कैसे बनाएं एंड समथिंग कॉल्ड नर्ड डाउट्स। ये दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है मेरे लेक्चर का। क्या है इसका, नर्ड डाउट्स का मतलब है अपनी सेल्फ ऑब्जर्वेशन से जो आपको डाउट्स आ रहे हैं। सी बहुत बार ऐसा होगा, चाहे केमिस्ट्री हुआ, चाहे मैथ्स हुआ, चाहे फिजिक्स हुआ, हमें क्लास समझ में नहीं आ रही, हमें क्लास समझ में नहीं आ रही। ठीक है, सो देयरफॉर क्या समझ में नहीं आ रहा है ये नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इतना सिली डाउट होता है कि सर आपने, अगर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम है तो सर आपने y को ये क्यों एज्यूम कर लिया कि y इज इक्वल टू x प्लस जेड, कुछ और क्यों नहीं एज्यूम किया। कई बार टीचर इतनी ज्यादा तेज कैलकुलेशन कर देता है कि हमारा दिमाग घूम जाता है कि अच्छा यार ये y इज इक्वल टू 1.25 कैसे आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें
अपने आप को ऑब्जर्व करना है और जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही है हमें उन्हें नोट डाउन करना है, चाहे वो कितनी सिली से सिली प्रॉब्लम हो, चाहे उसको देख के लोग हम पे हंसें। जब मैं कोचिंग में था, ठीक है, आई यूज्ड टू आस्क डाउट, सब लोग हंसते रहते थे मेरे ऊपर, मैं तब भी डाउट पूछता रहता था, बिकॉज ये गोल आपका है, ये जर्नी आपकी है, ठीक है। आप वहां पे बाकियों को इंप्रेस करने के लिए नहीं बैठे हो, ठीक है। स्टॉप कंपेयरिंग, नेवर कंपेयर योरसेल्फ, इससे आपकी बहुत, क्योंकि आपको कभी भी यूपीएससी का या फिर आईआईटी का जो एग्जाम है वो ऑल इंडिया एग्जाम है। अगर आप अपनी क्लास में नंबर 1 आ रहे हैं तो आप सिर्फ कंपैरिजन के बेसिस पे नंबर 1 आ रहे हैं, सिर्फ उन 30 या 100 बच्चों के बीच में नंबर 1 आ रहे हैं, आप ऑल इंडिया में 1 नहीं आ रहे हैं। तो हां, कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम आती है लोअर कॉन्फिडेंस की। अगर आपकी क्लास में रैंक 30 आ रही है, मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट देता था, ऑल इंडिया टेस्ट देता था, मेरी रैंक आती थी 50,000। फाइनली आईआईटी में कितनी आई? आईआईटी में आई मेरी 2282, ठीक है। मैं जितना वीक स्टूडेंट था उससे काफी अच्छा मैंने किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में 2282 मेरी रैंक आई, ठीक है। हाँ, रैंक 1 नहीं आई मेरी, टॉप 10 में नहीं आई, बट जहां से मैंने शुरू किया तो बहुत एक लीप जंप था। क्यों? कंपैरिजन का कोई फायदा था फिर अपना कॉन्फिडेंस डाउन करने का कि यार मेरी मॉक टेस्ट में 50,000 रैंक आ रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, नेवर कंपेयर। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे डाउट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए, हमें बाकी जो टीचर कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो टीचर के डाउट्स हैं, वो टीचर को लगता है वो उसके डाउट्स से, मेरे डाउट्स तो अलग है। सो देयरफॉर यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी ऑफ योर डाउट, एंड इफ योर कोचिंग इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग यू डाउट क्लियरिंग सेशंस, देन यू हैव टू ब्रिंग अप दोज डाउट्स बिना किसी शर्म के। कोई आपकी बेइज्जती नहीं हो रही, ठीक है, कुछ आपकी इज्जत नहीं लूट रही है, ठीक है। आपको ज्यादा क्या कहते हैं, आपको कहते हैं बेवकूफ है यार ये लड़का, इसका आईआईटी में हो ही नहीं सकता। When I started prepare for IIT, ठीक है, तो मेरे एक रिलेटिव है, ही वाज मैथ्स के बहुत एस्टैब्लिश्ड टीचर है, उन्होंने आके मेरे साथ एक सैंपल क्लास ली और उसके बाद उन्होंने घर में डिक्लेयर कर दिया कि ये हिमांशु का जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ये गधा है। क्या फर्क पड़ता है, कहने दो जिसको जो कहना है। आपको अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल निर्धारित तरीके से आगे बढ़ना है, इसलिए आप अपने छोटे से छोटे डाउट्स नोट डाउन करो और उनको जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद आ जाती है नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स कैसे बनाएं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, क्या करना है, हमें 2 टाइप की नोट्स बुक रखनी, हमें 2 टाइप की नोटबुक रखनी। एक हमें रखनी है आइडियल नोटबुक, और बाकी है आपकी जिसमें बाकी सारी प्रैक्टिस है, जिसमें शायद से आपके कोचिंग के नोट्स हैं, जिसमें आपके स्कूल के नोट्स हैं, कुछ भी है वो आपका अलग है। ये आइडियल नोटबुक क्या है? ये आइडियल नोटबुक बनेगी फिजिक्स की, ये बनेगी केमिस्ट्री की, ये बनेगी मैथ्स की। आइडियल नोटबुक के अंदर क्या करना है, अगर कोई भी टॉपिक है तो हर टॉपिक के लिए उसके जो थियोरम है, उसके जो फॉर्मूला है, शुरुआत में वो लिखे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका बिल्कुल बेस है, वो लिखा होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक जिसको मैं कहूंगा रिप्रेजेंटेटिव सॉल्व्ड क्वेश्चन। मैं ढूंढ रहा था, मुझे अपने घर में मिली नहीं, आज सवेरे 1-2 घंटे मैंने ढूंढी, मैं सोचा आपको दिखाऊंगा अपनी कैसी थी मेरी आइडियल नोटबुक्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव सोल्व्ड क्वेश्चंस मतलब कि एक अगर टॉपिक है, लेट्स से आपका मोमेंटम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स का, ठीक है, तो मोमेंटम जैसे हमारा टॉपिक है तो उसके जो बेसिक थियरम्स हैं और उसके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं शुरुआत के रजिस्टर में वो लिखे हों, और उसके बाद सबसे पहली प्रॉब्लम काफी सिंपल प्रॉब्लम, और उसके बाद 1 या 2 और ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि पूरे उस चैप्टर को कवर कर रही हैं, ठीक है। मतलब आप एक आधा सिंपल क्वेश्चन, जो रिप्रेजेंटेटिव प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन नंबर जो 1 है सॉल्व है, वो कॉन्सेप्ट नंबर 1 को क्लियर कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 को क्लियर कर रहा है, और तीसरा आप एक ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन उठा लो जो कि हर एस्पेक्ट ऑफ दैट टॉपिक को टच करेगा, और बस वो आपका मोमेंटम पूरा हो गया। अब आप नेक्स्ट टॉपिक के नोट्स बनाएं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट होता था, ठीक है, हमारे टाइम पे, अभी नहीं है वो क्या करते थे, और वो लगातार ऑल इंडिया रैंक 1 देते थे आईआईटी में।
उनका स्ट्रैटेजी ये था, वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्लास में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे, बट वो क्वेश्चन इतने सारे उसके एस्पेक्ट्स को कवर कर लेता था कि उसको सॉल्व करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो वही सेम स्ट्रैटेजी अगर हम अपनाएं कि हमारा रजिस्टर आइडियल ऐसा हो जिसमें टॉपिक हो, थ्योरम हो, फॉर्मूला हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव सॉल्व क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, इससे फायदा, और ये बहुत क्लियर हो, इसमें एक एक स्टेप बहुत डिटेल में लिखा हो, हमें एज्यूम बिल्कुल नहीं करना है, हमें कोई स्टेप मिस नहीं करना है, वरना मैथ्स में और फिजिक्स में हम स्टेप्स मिस कर देते हैं कि ये मान के चल देते हैं कि ये तो हमें आता ही है। इसकी हैंड राइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, इसकी हैंड राइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो ये जब आप बना लोगे तो कहां काम आएगा, ये आपको जब भी कोई डाउट आएगा आप अपना रजिस्टर खोलोगे और उसमें उस क्वेश्चन को देख लोगे और आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आपके आईआईटी में सिर्फ 2 या 3 महीने बचे हुए हैं, मोस्ट ऑफ योर टाइम विल बी गोइंग इन राइटिंग टेस्ट्स। मतलब मेरे जो लास्ट के 3 महीने थे आईआईटी में, आई यूज्ड टू डू 14 आवर्स अ डे ऑन टेबल, और उसमें मैं 3-3 घंटे के जैसे अगर टेस्ट हैं तो उसमें दिन में कम से कम 3 टेस्ट लिख देता था। तो मतलब मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम इट यूज्ड टू गो ऑन आंसर राइटिंग, ठीक है, प्रैक्टिसिंग टेस्ट। बचे हुए 1-2 घंटे जो मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाए, वो मैं फिर अपना ये वाला रजिस्टर खोलता था और देखता था यार मेरे से क्यों नहीं सॉल्व हो पाया, कॉन्सेप्ट रिवाइज करा, अच्छा चलो ठीक है। तो आपके जो लास्ट के 3 महीने हैं वो कंप्लीटली आंसर राइटिंग में जाएंगे, और रिवीजन के लिए ये आइडियल नोटबुक बहुत 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 ज्यादा मुझे तो हेल्प करी, एंड आई थिंक ये आपको भी काफी ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। अच्छा, दिवांश पूछ रहे हैं सर व्हाट इफ सिलेबस इन स्कूल एंड कोचिंग इज डिफरेंट। तो हाँ, ये प्रॉब्लम आती है सिंक की। ऐसा हो सकता है कि स्कूल में जब चैप्टर 1 चल रहा है तो आपका कोचिंग में चैप्टर 3 चल रहा हो, तो आपको डिसाइड करना है। जितना मेरा अंदाजा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो कोचिंग को प्रेफर करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल सिस्टम में आजकल एक रट्टाफिकेशन की तरफ ज्यादा बहाव है। फोकस सिर्फ इतना रहता है कि बच्चे एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व कर पाएं और 100% सीबीएसई में ले आए, बस। एफएक्यू अप्रोच पे कोई ध्यान नहीं होता। व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये जो एक बेसिक सवाल होते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, वो नहीं दिखाए जाते हैं। सो देयरफॉर मैं फॉलो करूंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का सिलेबस, खासकर कि पीसीएम में। मैं आईआईटी के लिए अगर पीसीएम कर ले रहा हूं तो मुझे एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्यों आएगी? नहीं आएगी, और आएगी तो बाद में रिवाइज कर लूंगा। क्योंकि जो बच्चा आईआईटी के लिए थोड़ा सा भी डिसेंटली पढ़ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा जिसका आईआईटी में होना है, बट जो अच्छे से मेहनत कर रहा है उसके लिए एनसीईआरटी कुछ नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर ये एक टेक्निक रहेगी। लास्ट के बस 5 मिनट में आपके ये लूंगा। अच्छा, एक और चीज, मैंने आपके टाइम टेबल में एक चीज देखी। टाइम टेबल में आपने लिखा हुआ है हैड लंच एट 3:30 PM एंड आफ्टर दैट 4 PM इन्फिनिटी क्लास। ये बहुत ज्यादा गलत है मेरे दोस्त। बायोलॉजी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब हम खाना खाते हैं ऑल ऑफ आवर ब्लड इट मूव्स टुवर्ड्स आवर स्टमक सो दैट डाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड देयरफॉर ब्रेन इज नॉट एक्टिव। दैट्स वाई आपको खाना खाने के बाद नींद आती है। सो देयरफॉर एटलीस्ट हैव अ 1 hour गैप ऑफ नॉट ईटिंग एनीथिंग when you start attending the class. दूसरी चीज मैं बोलूंगा, डिसिप्लिन मेंटेन करो। एक मंदिर की तरह रखो अपनी स्टडी टेबल को, वहां पे सब चीजें क्लीन होनी चाहिए। जब आप वहां पे बैठे तो ऐसा नहीं कि आप चाहे स्कूल की क्लास अटेंड कर रहे हो चाहे इन्फिनिटी की, आप साथ में चिप्स खा रहे हो, ठीक है, नहीं, उससे फर्क पड़ता है। एक सेंस ऑफ डिवोशन, एक सेंस ऑफ वो चीज आती है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। लास्टली आई वुड लाइक टू talk to the parents, and on that note I'll be ending my lecture. So there is a small story, ठीक है, which I recently read, ठीक है, और heard. The story was actually of a teacher and a student, but many times I feel that parents, they do not know about their children. So the story goes like this. It is a English story है, ठीक है. So the name of the child was Teddy, and Teddy was studying in class 8th, and there was this teacher, class teacher, and Teddy used to be very disoriented. टेडी जो है किसी भी चीज में ध्यान नहीं देता था, बड़ा क्लमजी रहता था, कई बार ऐसा लगता था कि स्कूल में नहा के भी नहीं आया है, राइट। एंड द टीचर शी यूज्ड टू लव कि जब वो टेडी के आंसर्स चेक कर रही है तो उसे बड़ा सा रेड कलर से बिल्कुल एक 0 मार्क्स देना, या फिर फेलियर लिखना, या फेल लिखना, या बड़ा सा ऐसे काटना, बिकॉज शी यूज्ड टू कंसिडर हिम एज अ न्यूसेंस इन द क्लास, कि ये क्या है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है।
सो उस स्कूल में एक प्रैक्टिस थी, एक प्रथा थी कि बच्चों का जो इतिहास है, जो टीचरों ने लिखा हुआ है, उसको पढ़ना है, मतलब जो टीचर्स के ऑब्जर्वेशंस हैं. सो शी पिक्ड अप द हिस्ट्री ऑफ टेडी. सो व्हेन शी टुक अप द क्लास सेकंड, it was written by the class teacher of class second of Teddy that Teddy is a brilliant chap. Teddy is very, very humorous. Teddy gels so well with his friends. He is very, very popular in the class and his academics are also very brilliant. Then when she looked up at class third, again the same things, that Teddy has now started taking interest in many of the sport activities also, and he has made a beautiful project, and he came first in the class or second in the class. But then from class fourth, it was written by the class teacher that gradually Teddy is seeming to be a little disturbed. His attention span in the class is going a little down, right? I hope that he is able to, I'm trying to motivate him, I hope that he is able to get back with the old kind of a thing. Then in the next class, the class teacher had written that gradually we have seen a strong decline in Teddy's attention span, and actually there is a problem at his home, and if the problem at his home it is not resolved, that is his mother is ill, and if the problem in that home is not resolved, then Teddy might go haywire, मतलब वो इधर उधर हो जाएगा. In the next class it was written that Teddy is now completely disoriented. He has lost his mother, and therefore a huge setback has come to him, and he is not concentrating in the class. His behavior is, he is gradually losing out the friends, and his behavior is going in separate direction. In the next, again the same repeat is there, that Teddy is no more a student which he used to be. He has no interest in the subjects, he has nothing. The teacher, she realized that what mistake she was doing. ठीक है, उसकी आंखों में आंसू आ गए, एंड देन जब वो क्लास में गई, उसके बाद अगले दिन जब वो गई तो उसने बच्चों को एक असाइनमेंट दिया हुआ था कि टीचर के लिए कुछ कुछ चीज लेके आना है. तो टेडी लेके आया एक टूटा हुआ ब्रेसलेट, उसके अंदर आधी बीड्स वीड्स भी सब गायब थी. साथ में वो लेके आया परफ्यूम की बोतल जो कि आधी खाली थी. जब टेडी ने अपना सामान टीचर को दिया तो सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लग गए, क्योंकि अब वो आदत भी पड़ गई थी उनको कि ये कैसा लड़का है, ना नहाता है, ना ठीक से रहता है, ना कैसा है, अलग सही रहता है, और देखो क्या गिफ्ट लेके आया. सब हंसने लग गए, बट टीचर को असलियत पता थी. तो टीचर ने उस ब्रेसलेट को पहना और सारे बच्चों के सामने उस परफ्यूम को लगाया. उस टाइम पे टेडी टीचर के पास आया और टीचर को कहा कि मैम यू स्मेल जस्ट लाइक माय मदर, और टीचर की आंखों में आंसू आ गए. उस दिन के बाद टीचर ने टेडी के ऊपर ध्यान दिया. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी पढ़ाई अच्छी हुई, वो पूरा टच में रहा, और एंड तक उसको चिट्ठियां लिखता रहा. चाहे जब उसका कॉलेज पास हुआ, चाहे जब उसकी नौकरी लगी, जब उसकी शादी हुई, तो उसने अपनी टीचर को बुलाया और उसको जहां पे वो माँ का जो काम होता है, जो भी रीति रिवाज होते हैं, वो उससे करवाए. तो उस टाइम पे उसने कहा कि यू आर माई बेस्ट टीचर, यू हैव ऑलवेज बीन माई बेस्ट टीचर. और तब टीचर ने कहा कि नहीं टेडी, तुमने मुझे सिखाया कि अच्छा टीचर होना क्या होता है. इसी तरीके से कई दफा क्या होता है, आजकल के हम रहते तो न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि जो बच्चे हैं वो अपनी व्हाट्सएप की दुनिया में हैं, उनका एक अलग है. काफी बार विद इन द होम जो रोल है टीचर का, वो एक माँ बाप का हो जाता है, और जो बाकी बच्चे होते हैं वो टेडी हो जाते हैं. तो देयरफॉर बहुत ज्यादा जरूरी है दैट देयर इज अ ट्रस्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स. देयर इज अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्टिक टुवर्ड्स योर चाइल्ड, कि चाहे बच्चा जो है आपको अपनी गलतियां ना बता पाए, अपनी प्रॉब्लम्स ना बता पाए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपको अपना दोस्त समझे और आप उसको पॉजिटिवली एनकरेज करो. ठीक है, सो देयरफॉर ऑन दैट नोट आई विल एंड माय सेशन, एंड गॉड ब्लेस यू. और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आप बस अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए, अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करिए, अपनी गलतियों को महत्व दीजिए. छोटी छोटी आपकी जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उसके ऊपर पूरा ध्यान रखिए. जो चाहे कितना ही बेवकूफों जैसा डाउट हो उसको क्लियर करिए, और बस आप अपने लक्ष्य पे निर्धारित रहिए. ये सब जो चीजें हैं, टाइम टेबल, परफेक्ट टाइम टेबल कुछ नहीं है. आपका जो ब्रेन है, आप जब सब्जेक्ट को किसी को इंटरेस्टिंग पाएंगे, ठीक है, उसको विजुलाइज करिए उस इंटरेस्ट को. उसमें हम अपने इंटरेस्ट किस चीज में होता है, इंटरेस्ट उस चीज में होता है जिस चीज को हम अच्छा कर सकते हैं. आप टेनिस खेलना स्टार्ट करो और आपने ए शॉट उधर मार दिया, ए शॉट उधर मार दिया, आपके एक भी पॉइंट आप स्कोर नहीं कर पाए. आपने लगातार 3 दिन ट्राई किया, एंड आफ्टर दैट यू विल से आई डोंट हैव एन इंटरेस्ट इन टेनिस.
बट आप जब बैडमिंटन खेलने लगे, लेट्स से आप 1-2 गेम जीत गए, तो क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो इंटरेस्ट किस चीज को कहते हैं? जिस चीज को हम थोड़ा सा सॉल्व कर पाते हैं ना, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उसको पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है, और उसमें उसको रिजॉल्व करके देखना है। ठीक है, और ये माइंड मैप्स और ये सारी चीजें, टेक्निक यूज करनी है, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लक्ष्य बस निर्धारित करिए, मेहनत करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।